Hello dear students, welcome to the video today. Children, I am carrying on with this mode because a lot of things are there that I want you to mark in the book itself. Of course, we'll be carrying on with the lecture method because lecture method already we are carrying on in the online classes. So I thought that certain points are there which if you are well versed with in the book itself, it would be quite helpful to you. So I am carrying on with this mode. Last class where we had stopped, my dear students, we were talking about the construction of dams. Dams were also called as temples of India by late Sri Jawaharlal Nehru ji. He said that dams are the temples of India because Indian economy rests on the landowners are there, large farmers are there, industrialists are there. When the dams are constructed, is it beneficial for everyone? I have already pointed it out. As I am pointing it out once again, dear students, that dam construction is beneficial for a person who is living in the city. Yes, my dear students, electricity generate होती है, लेकिन on the other hand, a person who is living in the village area, dam when it is constructed, now it is not constructed in a kilometer or two. Hundreds and hundreds acres of land is submerged in water. काफी बड़ा एरिया पानी में सबमर्ज हो जाता है. इसका मतलब आप समझ रहे हैं? Are you understanding the meaning of this? ठीक है, lot of examples are there. There is नर्मदा रिवर, there is सतलज रिवर. जितने जगह पे डैम बना है, all the dams that have been made, it has submerged hundreds and hundreds acres of land in water. इन जगहों पे जो लोग रह रहे थे, कभी ना कभी तो रह ही रहे होंगे. क्या होता है that the people who have been staying in these areas, they have been staying in these areas from a very long time. एक होता है ना, पुश्तैनी मकान है, पैतृक घर है, पिताजी के पिताजी ने ये घर बनवाया था, बहुत पुराने घर, स्पेशली पहाड़ों में. एंड सडनली सम गवर्नमेंट पीपल कम एंड टेल यू, आप प्लीज़ इस घर को खाली कर दीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे. इमोशंस विथ मनी. कैन वी रियली कैलकुलेट इमोशंस विथ मनी? The kind of emotional attachment that the person has with that house, nobody can pay for that. उसका पैसा कोई नहीं दे सकता है, my dear students. Yes, that's the fact. So, अगर लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स, अगर ऐसे प्रोजेक्ट से उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो किसको बेनिफिट मिल रहा है? अब देखो क्या होता है, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर which are working to stop the construction of this dam. भैया डैम के कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करना, it doesn't sound very good because somewhere we are stopping the development. Can we stop the country from development? No, my dear students. It is correct to stop the development. लेकिन on the other hand side, we have to make arrangement for the people who are displaced from those places. Government is cared about the dam, government is concerned about the electricity generation, government is concerned about the agricultural policies, but government ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट द नीड्स ऑफ द कॉमन पीपल, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि दैट इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट. गवर्नमेंट इज़ गिविंग मनी, पैसा तो गवर्नमेंट दे ही रही है. देयर आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ट्राइबल पीपल के लिए, फार्मर्स के लिए, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स आर अगेंस्ट द डैम प्रोजेक्ट. पीपल अपोज इट कि आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को वहाँ पे सेटल कर रहे हैं. व्हाट अबाउट द पीपल हु वुड बी डिस्प्लेस्ड?
जो लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? गॉट इट? तो इट इज ओरिजिनली फोकसिंग ऑन द एनवायरमेंटल, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, रिलेटेड टू द ट्रीज दैट आर देयर दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर के अंदर में ये जो सबमर्ज हो जाएगा। अभी क्या हो गया है, रीफोकस किया गया है। इट हैज़ बिन रीफोकस टू एम द क्या है कि पुअर सिटीजन्स, द जो लोग वहाँ रह रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर पुअर पीपल। नदी के किनारे गांव है छोटा, उस गांव में कोई मछुआरा रह रहा है, सब मच्छी पकड़ने वाला है, या फिर कोई छोटा सा फार्मर है। ऑल दीज पुअर सिटीजन्स, ठीक है, especially the ousties. Just see a new word you will be finding. Even I also found it for the first time in the book. Ousties. Ousties means जिन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है, हट जाओ भाई हट जाओ, डैम बनेगा डैम बनेगा। ठीक है, तो हम पूछेंगे डैम बनाने जो लोग आ रहे हैं कि भाई हम कहाँ जाएंगे? दिल से भैया ऐसा है, अपना कोई भी जगह आप खोज लीजिए, आप कोई फ्लैट ले लीजिए, आप कोई शहर में चले जाइए। भैया हम गांव के रहने वाले हैं, आई स्टे इन द विलेज, ये हमारे पुरखों की ज़मीन है। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? पुरखों की ज़मीन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आप इजीली किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। नोबडी कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इजीली। सो दे आर बीइंग सेड कि दे वुड बी गेटिंग फुल रिहैबिलिटेशन, हैबिलिटेशन। आपको मतलब कि देर इज़ अ वर्ड इन हिंदी कॉल्ड एज पुनर्स्थापित, कि आपको अपनी जगह से गया बिकॉज ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन, तो आपको वापस से कहीं पे सेटल किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐसे डजंट लीव द पुअर पीपल। गरीब लोगों को इस तरह से गवर्नमेंट इज नॉट लीविंग, गवर्नमेंट इज डज मेक द अरेंजमेंट। लेकिन वही बात है, आर द पीपल एक्सेप्टिंग द अरेंजमेंट्स? क्या लोगों को ये अरेंजमेंट पसंद आ रहा है? ओके, तो लोगों को लगा कि देयर सफरिंग्स वुड नॉट बी इन वेन। इनकी जो परेशानी है खाली नहीं जानी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ नतीजा निकल के आना चाहिए। सो दे एक्सेप्टेड द ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उस जगह से वो हट जाते हैं, ये बिलीव करते हुए कि अ प्रॉमिस ऑफ इरिगेटेड फील्ड्स एंड प्लेंटीफुल हार्वेस्ट। पीपल कम, जो डैम बनाने आते हैं ना, द इंजीनियर्स, द गवर्नमेंट पीपल, द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दे प्रॉमिस दीज पीपल, अरे आप हट जाइए, आपको हम एग्रीकल्चरल लैंड दे देंगे, जितना पानी आपको चाहिए आपको हम डैम से वो पानी भी प्रोवाइड करेंगे। तो लोगों को काफ़ी लालच आ जाता है, पीपल थिंक हाँ 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 बहुत अच्छा है। सो ऑफन व्हाट हैपेंस, द सर्वाइवल्स ऑफ रिहंद, रिहंद इज ऑल्सो अ डैम, उन्होंने बताया एक, दिस इज अ लाइव एक्सपीरियंस ऑफ दोज पीपल दैट दे एक्सेप्टेड देयर सफरिंग्स। उन्होंने अपने कष्टों को एक्सेप्ट किया कि देश की तरक्की उनके खुशी से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, इफ़ आई पुट इट अक्रॉस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, देश की तरक्की के लिए खुशियों को कुर्बान कर दिया। खुशी किस चीज़ की? ऑफ कोर्स लिविंग इन योर ओन प्लेस। आप अपनी जगह पे रह रहे हो, आप अपने इलाके में रह रहे हो, आप अपने लोगों के साथ रह रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट हैप्पीनेस ऑल टुगेदर। लेकिन आफ्टर 30 बिटर ईयर्स ऑफ बीइंग अड्रिफ्ट, 30 साल हो गए हैं डैम को बने हुए, देयर लाइवलीहुड हैविंग इवन बीइंग मोर प्रिकेरियस। पहले तो फिर भी खाने पीने का जुगाड़ हो जाता था, अब क्या है, दे आर हार्डली एबल टू अर्न एनी मनी। कोई पैसा वो कमा ही नहीं पा रहे हैं। दे कीप आस्किंग, पूछते रहते हैं, आर वी द ओनली वंस चोजन टू मेक सैक्रिफाइस फॉर द नेशन? क्या सैक्रिफाइस मतलब कि देश के प्रति सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? हमारा घर आपने ले लिया, डैम बना दिया, वॉट अबाउट द अदर पीपल? और लोगों से भी सैक्रिफाइस करने के लिए कहिए। वाई ऑलवेज द पुअर पीपल शुड सैक्रिफाइस? Is sacrifice made only for the poor people? Just see how the things are attached to this big projects. ये कहाँ से मिला है? ये सोर्स है, दिस इज अ लाइव एक्सपीरियंस and this has been written in the book written by S. Sharma, Tribal Conflicts over Development in Narmada Valley. नर्मदा वैली में ट्राइबल का जो लड़ाई चल रही है
उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है, बेली ऑफ द रिवर, इन द बेली ऑफ द रिवर। ठीक है, ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स कितना है, डेवलपमेंट मतलब बेली ऑफ द रिवर, रिवर का जहाँ पे मेन एरिया है, जहाँ पे कि रिवर को पूरा कलेक्ट हो रहा है पानी, उस जगह की कहानी है ये। ओके, अब देखो सरदार सरोवर डैम, अभी तो नर्मदा रिवर के ऊपर इट इज़ ऑलरेडी बीइंग मेड। दिस इज लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट इंडिया में। ये जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, दिस इज कनेक्टिंग, दिस इज गिविंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। कितनी दूर तक इसका फायदा जा रहा है चिल्ड्रन, जस्ट सी दैट। एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट क्या है, वाटर जहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, वेयर वाटर इज नॉट रीचिंग, ड्रॉट इज देयर, जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट प्रोन एरिया इज देयर, डेजर्ट एरिया इज देयर इन गुजरात। 9,490 villages are there, 173 towns are there. राजस्थान में 124 villages. It is all covered by the सरदार सरोवर डैम। मतलब कवर्ड बाय द डैम मतलब कि सारा इलेक्ट्रिसिटी वहीं से जनरेट हो रहा है। ऑल द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम दिस प्लेस, दिस इज बीइंग सेड हियर। ओके, तो अभी सरदार सरोवर डैम ऑर्गेनाइजेशन से अब देखो और देखो क्या क्या चेंजेस हुए हैं। डैम कंस्ट्रक्शन आप अपोज कर रहे हैं, नो डाउट, आई वोंट से, इनफैक्ट यू विल ऑल्सो नॉट से दैट इट इज इनजेन्युइन। लेकिन फिर अगर आप, if dams are being constructed, some alternative arrangement needs to be made for the people who are staying in those areas. उस जगह पे जो लोग रह रहे हैं उनकी responsibility. Okay, so irrigation के वजह से many things have changed. Cropping pattern has changed in many region with the farmers शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। पानी खूब इस्तेमाल कीजिए, या पानी की कोई कमी नहीं है तो आप ऐसे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जिसमें पानी ज़्यादा चाहिए। मेनी क्रॉप्स आर देयर, लाइक राइस इज देयर, राइस में बहुत पानी, तो पीपल हैव स्टार्टेड ग्रोइंग राइस इन देयर फील्ड्स। पहले ऐसे क्रॉप्स ग्रो करते थे जिसमें कम पानी लगता है, बट नाउ द फार्मर्स आर जॉली वेल यूजिंग द वाटर plentifully and growing the crops which are needing more and more water. तो सोशल लैंडस्केप भी थोड़ा चेंज हो गया है। सोशल गैप बिटवीन द रिच लैंड ओनर्स, लैंडलेस पुअर पीपल, दिस हैज ऑल्सो फिनिश्ड। तो अब क्या हम देख रहे हैं, डैम्स हैव क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल। डैम के वजह से भी लड़ रही हैं, क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, जस्ट सी इट इज मेंशन्ड हियर, पीपल वांटिंग different uses and benefits from the same water resource. पानी तो एक ही है भाई, डैम का ही पानी आ रहा है, सरदार सरोवर डैम का पानी है विच इज रीचिंग टू गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कितनी जगह पे द वाटर इज बीइंग सप्लाइड। गुजरात में क्या है, साबरमती बेसिन फार्मर्स वेयर एजिटेटेड। साबरमती जहाँ रिवर फ्लो कर रहा है वहाँ पे इन द लोअर एरिया साबरमती बेसिन में फार्मर्स बहुत नाराज हो गए। फार्मर्स वेयर एजिटेटेड, बहुत नाराज थे, एंड दे कॉज्ड अ रायट, इन्होंने दंगा कर दिया ओवर द हायर प्रायोरिटी। उन्होंने कहा, द फार्मर्स इन दैट एरिया साबरमती, उन्होंने कहा कि ज़्यादा पानी जो है, वाटर सप्लाई इज गिवन टू द अर्बन एरियाज। ज़्यादा पानी कहाँ जा रहा है, शहरों में जा रहा है, पर्टिकुलरली सूखा पड़ने के टाइम पे। सूखा पड़ जाता है, इतना सारा पानी आ रहा है, आखिर ये पानी जा कहाँ रहा है। डैम्स कंस्ट्रक्ट किया, गरीबों को वहाँ से हटा दिया, नाउ वेयर इज दिस वाटर गोइंग। सो इंटर स्टेट, राज्य का दूसरे राज्य के साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं वाटर डिस्प्यूट को लेके, एंड शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। अब देखो, खाली साबरमती वालों का ही, खाली गुजरात और राजस्थान में ही लड़ाई नहीं चल रही है, महाराष्ट्र में देयर इज ऑल्सो डिस्प्यूट इन कर्नाटका।
कृष्णा एंड गोदावरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज देयर। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में भी लड़ाई चल रही है। ठीक है, अब क्या है, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में देयर इज अ रीजन कॉल्ड कोयना। कोयना नाम की जगह है महाराष्ट्र में। तो मोर वाटर इज गिवन टू कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट वहाँ पे भी बन रहा है, तो कोयना में ज़्यादा पानी जो है वो जा रहा है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो दिस वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो। क्या हो रहा है, पानी भाई ऊपर से नीचे बह रहा है। सो व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग, तो जो लोग ऊपर में पानी अपने तरफ डालते हैं, दे डाइवर्ट द वाटर टुवर्ड्स देमसेल्व्स। सो नीचे वालों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है। ओके, तो this, because of this, what happens, there is problem, consequences for agriculture and industry, there is a big issue. तो वाटर डिस्प्यूट हमने देखा चिल्ड्रेन। अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ द मैप वर्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप वर्क है। द चैप्टर हैज़ बिन एक्सक्लूडेड इन द बोर्ड बट मैप वर्क इज़ देयर। इसमें एक ये वाला जस्ट आई वॉन्टेड टू complete this topic। ज़्यादातर ऑब्जेक्शंस क्या है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फेलियर टू अचीव द पर्पस। ये किस लिए बिल्ट हो रहा है, यू नो, ऑपोजिशन इज देयर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आर पीपल अपोजिंग सच बिग प्रोजेक्ट्स। इतने बड़े प्रोजेक्ट को पीपल आर अपोजिंग बिकॉज डैम्स विच आर कंस्ट्रक्टेड लिए अब क्या हो गया है, उससे फ्लड ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। जहाँ पानी आके इकट्ठा हो रहा है ना, नदी को तो आपने बांध दिया, लेकिन नदी तो बह रही है, एक जगह पे पानी सारा आप इकट्ठा कर रहे हैं। तो पानी जब इकट्ठा कर रहे हैं तो कभी कभी पानी एक्सट्रीम एक्सेस में पानी जमा हो जाता है। एंड बिग डैम्स में क्या हो रहा है, मोस्टली बिन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। फिर उनको पानी छोड़ना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होती है, लेकिन जब ये पानी छोड़ते हैं आसपास का एरिया पूरा पानी से भर जाता है। ठीक है, अब डैम्स का जब वाटर रिलीज होता है हेवी रेन के टाइम में, तो फ्लड सिचुएशन महाराष्ट्र एंड गुजरात में बहुत बढ़ जाते हैं। 2066 में बिग फ्लड्स वेर देयर। पूरा द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी वॉज डेवास्टेटेड एंड सॉइल इरोशन वॉज देयर। काफ़ी सारी मिट्टी भी बह गई उसके साथ। लॉट ऑफ सॉइल फ्लो वॉज ऑल्सो देयर अलॉन्ग विद द वाटर। तो क्या होता है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन्स किसी भी चीज़ का जमा हो जाना। सेडिमेंटेशन meant that flood plains were deprived of silt. The rivers bring lot of silt with it ना, बहुत सारी मट्टी, बालू, कीचड़, ये हमको नहीं समझ में आता है, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चरल फील्ड। तो ये तो रोक दिया, और ये सारा पानी, ये सारा कहाँ जमा हो रहा है, डैम के नीचे में। इट इज़ गेटिंग डिपॉजिटेड, जहाँ रिजर्वायर इज़ देयर, वाटर इज़ एक्यूमुलेटेड। ठीक है, सो नेचुरल फर्टिलाइजर इज है तो होता है। अब क्या हो रहा है, देयर इज लैंड डिग्रेडेशन। जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, दोज एग्रीकल्चरल फील्ड्स आर गेटिंग डिग्रेडेड। प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑल द गुड क्वालिटी सॉइल एंड सिल्ट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द डैम्स। अब waterborne diseases are there, pests are there, pollution is there। अब एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो डैम्स अच्छे भी हैं, डैम्स खतरनाक भी हैं। वी हैव डिस्कस्ड बोथ द एस्पेक्ट्स माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, दोनों चीज़ हमने देखा है। अब हाउ आर वी गोइंग टू यूटिलाइज दिस रेन वाटर, ये हम नेक्स्ट क्लास। Abhi, I wanted to discuss the map work. Okay, let's discuss the map work. So students, when we are seeing this map work के लिए तो मेरे को आपको बुक में ही दिखाना पड़ेगा। You can see the map work here very clearly। सबसे पहला जो आपको बताना है, कश्मीर के तरफ a big project that has been taking place, the construction work that has been there is Salal project।
सलाल, इंडस, झेलम, चेनाब, राबी, सतलज, all this is there. And then this project on a very large scale is being carried forward. That is the Salal project. Okay. Then you have very big dam project is there, and one of the very beautiful ones. Okay. इसके बाद आते हैं भाखड़ा नंगल पे. Come on, let's see this भाखड़ा नंगल. ठीक है. सतलज रिवर इज देयर एंड ब्यास रिवर इज देयर. ये ब्यास है और ये सतलज है. इसके ऊपर ये भाखड़ा नंगल है, एंड भाखड़ा नंगल डैम से इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड विच इज कवरिंग द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश. काफ़ी सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कवर्ड. ओके. अब एक और है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा controversies going on. That is the Tehri Dam. Tehri Dam project is there. रिवर गंगा रिवर के ऊपर ये टेहरी डैम बन रहा है. एंड चूँकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से पानी यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे नरोरा पावर प्लांट इज़ ऑल्सो देयर. डैम बना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा. तो फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दिस नरोरा पावर प्लांट इज देयर. ओके. अब आते हैं यहाँ पे, आप देखिए राजस्थान में हियर इज द कोटा बैरेज, एंड यहाँ पे गांधी सागर डैम एंड राणा प्रताप सागर, दो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं. बिग प्रोजेक्ट्स. राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में, राजस्थान में स्पेशली पानी की बहुत कमी है. लॉट ऑफ वाटर स्कैरसिटी इज देयर. तो दिस वाटर स्कैरसिटी इज फुलफिल्ड बाय दिस प्रोजेक्ट. गॉट इट? रिमेंबर, ये आपको स्टेट्स का नाम याद रखना है, एंड देन यू हैव टू रिमेंबर दीज पावर प्रोजेक्ट्स. कोटा बैरेज इज देयर. यहाँ पे रिहंद डैम है, यूपी में ही है ये, एमपी में, छत्तीसगढ़ के रिहंद डैम यू कैन सी. सोन नदी है, तिलैया है. ठीक है. बहुत सारा इसमें से आप लोग जानते भी होंगे. एंड गंडक रिवर, कोसी रिवर, घग्गर रिवर एंड गंगा रिवर इज हियर. ये सारे के ये रिहंद डैम जो है, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डैम्स which is providing energy resources to the states which are covering this area. इस एरिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे दिस इज़ प्रोवाइडेड. ओके. अब आते हैं उड़ीसा. हीराकुड डैम है, महानदी रिवर के ऊपर हीराकुड डैम इज़ बिल्ट. देन वी कम टू, ये रिवर का नाम भी आपको याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द रिवर्स जिसके ऊपर की ये डैम बना हुआ है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज डैम्स. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज़ देयर. सरदार सरोवर हम जानते ही हैं, एंड रिसेंटली सरदार सरोवर हैज़ बीन वेरी मच इनटू न्यूज़ बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिगेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड. यस, सबसे बड़ा द स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमने बनाया हुआ है. अभी जो स्टैचू वहाँ बना है, सरदार पटेल की जो स्टैचू बनी है, वेरी यूनिक एंड अ वेरी बिग टूरिस्ट प्लेस. दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए. ओके. देन यू हैव द प्रवारा रिवर, प्रवारा डैम इज़ देयर. एंड ये देखो यहाँ पे जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, मैंने बताया था ना, कोयना रिवर, ये कृष्णा रिवर के ऊपर ये कोयना डैम है. सारा पानी उधर लोगों की शिकायतें हैं कि कोयना डैम जो है उधर सारा रिवर वाटर इज़ गोइंग दैट साइड, जिसके वजह से कि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वाटर की. एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ देयर. देन वी हैव द नागार्जुन सागर डैम, एंड तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ये
तुंगभद्रा इज मेड, ये भी, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये रिवर्स। अच्छा, लोकेशन ऑफ द रिवर्स एंड द स्टेट्स वेयर दीज रिवर्स आर फ्लोइंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट जीके पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन। ठीक है, जीके के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देन यू हैव एकदम साउथ में जब आ रहे हैं तुंगभद्रा, यहाँ पे हर रिवर ज़्यादा, पता है अगर डैम्स नहीं बनता तो हाँ कहीं ना कहीं वी वुड हैव कॉम्प्रोमाइज्ड विथ आवर डेवलपमेंट। आज इलेक्ट्रिसिटी जितने आराम से हमको मिल रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, लेकिन एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं पे अच्छा चलता। तो देखो क्या है कि डेवलपमेंट की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी, तो दिस इज़ द प्राइस दैट वी आर पेइंग फॉर डेवलपमेंट। लेकिन पानी की क्राइसिस बहुत बड़ा प्राइस पे कर रहे हैं हम। डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होगा भी, लेकिन हम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। लुक एट द काइंड ऑफ कॉस्ट दैट वी आर पेइंग फॉर दिस डेवलपमेंट। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे जस्सी सबसे साउथ में जब आ रहे हैं तो ये पेरियार रिवर इज़ देयर, पेरियार रिवर इधर से फ्लो कर रहे हैं, और आप उसके ऊपर भी यहाँ देखो जहाँ रिवर का द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट रिवर, वहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पे उसी जगह पे, क्योंकि जहाँ से रिवर हैज़ स्टार्टेड डैम बांध देना पड़ेगा वहीं ना, रिवर आगे बढ़ जाएंगे तो उसको बांधना मुश्किल हो जाएगा। सो वेयर द रिवर्स आर स्टार्टिंग, बांध वहीं बनता है, उस रिवर को वहीं बांध दिया जाता है, विच इज कॉल्ड एज डैम। गॉट इट? सो दिस इज ऑल वेरी वेल कनेक्टेड। सो चिल्ड्रन, यही था मैप वर्क, अच्छे से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and lot of things to learn from. Okay children, so here we stop and we'll be continuing in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you.